Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. In today's lecture, our question is, what is the local variable? Explain its scope and lifetime. What is a global variable? Explain its scope and lifetime. Then there is a difference between a local and global variable, formal and actual parameter. Let's start today's lecture. What is a local variable? Explain its scope and lifetime. What is a local variable? We have studied about a variable, variable declaration, variable initialization. Now, what is a local variable? The variable which we declare inside a program is called a local variable. A variable declared inside the function is known as a function, is also called a program. That's why I use the word program. Is known as a local variable. Local variable are also called a automatic variable. The syntax of declaring a local variable is as follow. We will use auto keyword and then data type and identifier. We know identifier is the name of a variable. Auto is a keyword that indicate the variable is automatic. The use of auto is optional, means you can skip it. Then we have a data type. It indicates the data type of a variable, means integer, float, whatever we want to use data type for particular variable we can use. Then there is a identifier. Identifier means the name of the variable that going to identify that particular variable. Scope of a local variable: the area where a variable can be accessed is known as a scope of a variable. Means boundary, limit where we can access that particular variable is called the scope of a variable. Local variable can be used only in the function in which it is declared. It means we can use that variable inside the function where it is declared. So what is meaning by this? It states that we can't use outside the function. We have to use inside the function. For this reason, its scope will be limited to the boundary of the function. If a statement accesses a local variable that is not in scope, the compiler generates a syntax error. अगर तो हमारे पास जो है लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश की जाती है जो कि स्कोप के अंदर ना हो, मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल है जो कि आप प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, फंक्शन के अंदर लिखते हैं और फंक्शन के अंदर ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. अगर आउटसाइड द फंक्शन आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम के अंदर कहीं, तो फिर कंपाइलर क्या करेगा, एरर दे देगा. जैसे कि आपने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम के अंदर एक फ़ंक्शन लिखा और फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया. अब आप उस फंक्शन के अंदर ही उस वेरिएबल को यूज़ कर सकेंगे, ना कि पूरे प्रोग्राम के अंदर. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास लाइफ टाइम ऑफ अ लोकल वेरिएबल. द टाइम पीरियड फॉर विच अ वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी इज़ नोन एज अ लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल. What does it mean? It means the duration for which the variable exists in the memory, remains in the memory, is called the lifetime of a variable. Different types of a variable have a different lifetime. The lifetime of a local variable starts when the control enters the function in which it is declared. As we had declared the variable in the function, inside the function, so its lifetime going to start when the compiler enter or control enters in the body of the function or in that function in which it is declared. Local variable is automatically destroyed when the control exit from the function and its lifetime एंड्स. लोकल वेरिएबल जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, उनका लाइफ टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है जैसे कंट्रोल जो है उस पर्टिकुलर फंक्शन से बाहर निकलता है. व्हेन द लाइफ टाइम ऑफ अ लोकल वेरिएबल एंड द वैल्यू स्टोर इन दिस वेरिएबल आल्सो बिकम inaccessible. It means
कि उसके अंदर जो वैल्यू आपने असाइन की थी वो भी तब ख़त्म हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है वेरिएबल का लाइफ टाइम ख़त्म हो गया है, तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो भी क्या हो जाएगी, एक्सेसिबल नहीं रहेगी एट दैट टाइम। तो इससे हमें जो चीज़ समझ आई है कि लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको आप इनसाइड द फंक्शन लिखते हैं, और आप उसको एक्सेस करना हो तो आप उसको फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। उसका स्कोप उतना ही है, यानी उसकी बाउंड्री, उसकी लिमिट्स उतनी है, उसके बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और जैसे ही आप उस बाउंड्री से बाहर निकलते हैं तो उसका लाइफ टाइम भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्लोबल वेरिएबल। What is a global variable? Explain its scope and its lifetime. Global variable declared outside any function is known as a global variable. A variable that we declare outside the function, means in a program, is known as a global variable. Global variable can be used by all the function in a program. If we have a program and we have written a 4-5 function, then all function have a right to access that variable that we have declared globally. The values of these variable are shared among different function. It means we can share the value of a variable between as many function as we want. If one function change the value of a global variable, अगर सपोज़ एक फंक्शन जो है उसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू जो है पहले 10 थी और बाद में वो फंक्शन के अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट दिखी है कि वो वैल्यू को चेंज करके 20 कर देता है, दिस चेंज इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू द अदर फंक्शन। तो वो जो चेंज हमने उसके अंदर किया है वो बाकी के फंक्शंस के अंदर भी अवेलेबल होगा। अब इसका स्कोप क्या है और इसका लाइफ टाइम क्या है? स्कोप ज़ाहिर सी बात है, अब हम इससे क्या करें, प्रोग्राम मेन प्रोग्राम के अंदर इसको जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर नहीं डिक्लेयर कर रहे। तो जैसे कंट्रोल आपका प्रोग्राम से बाहर निकलेगा, उस मेन प्रोग्राम से बाहर निकलेगा, तब उसका स्कोप, उसकी जो है वो एरिया, वहाँ तक हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज बाय ऑल द फंक्शन इन द प्रोग्राम. इट मीन्स दैट these variable are globally accessed from any part of the program. Normally global variable are declared before the main function. Normally क्या किया जाता है, इनको मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इनका एरिया सारा क्या हुआ, उस तमाम प्रोग्राम हुआ, पूरा प्रोग्राम हुआ जिसके अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ना कि एक प्रोग्राम का एक पीस ऑफ कोड, यानी फंक्शन नहीं। फंक्शन के अंदर हम सिर्फ जो फंक्शन जो स्कोप था वो किसका था, लोकल वेरिएबल का था, यानी हमने उसके अंदर डिक्लेयर किया था और वहीं पे हम उसको एक्सेस कर सकते थे, तो उसका स्कोप भी वो फंक्शन था। लेकिन अब ग्लोबल वेरिएबल है, चूँकि ये प्रोग्राम के अंदर आपने किया है, तो इसका एरिया भी जो है वो एक्सपेंड कर गया और पूरा प्रोग्राम जो है वो इसका स्कोप हुआ, उसकी बाउंड्री के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइफ टाइम ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज़ रनिंग। व्हाट डज इट मीन्स कि जब तक आपका प्रोग्राम जो है जिसके अंदर आपने डिफरेंट फंक्शंस भी लिखे हैं, जब तक वो प्रोग्राम जो है वो आपका रन करता रहेगा, तब तक ये वेरिएबल जो है वो मेमोरी के अंदर रहेगा। दीज वेरिएबल आर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द मेमोरी वन द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। जैसे आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट करेगा, जैसे आपका कंट्रोल जो है वहाँ से एग्जिट करेगा, तो ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दीज वेरिएबल ऑक्यूपाई मेमोरी लॉन्गर देन द लोकल वेरिएबल की निस्बत ये मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहते हैं। सो द ग्लोबल वेरिएबल शुड बी यूज्ड ओनली वन दीज आर वेरी नेसेसरी। जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब आप इनको जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहती है, मेमोरी को ज़्यादा देर तक ऑक्यूपाई करते हैं और ये ज़्यादा मेमोरी जो है वो लेते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको फ़र्क समझ आ जाएगा। ये बहुत आसान सी चीज़ है। देखिए, लोकल वेरिएबल जिसको आपने एक पूरा प्रोग्राम है, उसके अंदर आपने डिफरेंट फंक्शन लिखे हैं और हर फंक्शन के अपने अपने वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किए हैं, तो वो फंक्शन के जो वेरिएबल हैं वो उसके लोकल वेरिएबल कहलाएंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं प्रोग्राम के अंदर, मेन प्रोग्राम के अंदर कहीं वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और बाकी के तमाम फंक्शन जो है उसको शेयर करते हैं या उसको यूज़ करते हैं, तो फिर वो ग्लोबल वेरिएबल आपके कहलाते हैं। इसी के हवाले से एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, write a program that inputs a number in a global variable. It calls the function that multiplies the global variable by 2. Then the main function display the value of the global
ग्लोबल वेरिएबल, आपने क्या किया, आपने एक प्रोग्राम लिखा और आपने एक ग्लोबली वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया, और हमने कहा था कि वो हम क्या करेंगे, मेन से पहले जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे इंट जी जो है वो हमारा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। वॉइड इंट जो है ये हमारा फंक्शन का नाम है, यानी प्रोटोटाइप दी हुई है। उसके बाद वॉइड मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। एंटर अ नंबर, यूज़र ने नंबर एंटर करवाया जी के अंदर। प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ जी बिफोर द फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल से पहले जी की वैल्यू को प्रिंट करवाया। डेट वाज अ 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने, सॉरी ये वॉइड फन है जो है ना आपके फंक्शन का नाम। फिर फ़न को जब कॉल की तो कंट्रोल आपका जो है वो फ़न पे आया और जी की वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके रिटर्न किया। तो फिर उसको डिस्प्ले किया तो वो वैल्यू कितनी डिस्प्ले हुई है, 10 डिस्प्ले हुई है। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल इज़ डिक्लेयर विद इन अ फंक्शन. Global variable is declared outside any function. It can be used only in the function in which they are declared. Global variable can be used in all the function. It is created when the control enters the function in which it is declared. It is created when the program starts execution. Global variable created when the program starts its execution, because we have written in before the main. It is destroyed when the control leaves the function. Local variable become inaccessible, and it, it destroy when the control leaves the function. Instead of uh, remain in the memory for a long time. Now look at the global variable. It is destroyed when the program terminate. It is used when the value are to be used within the function. It is used when the value are to be shared among the different function. That was the basic difference between a local variable and global variable that you already know. Now there is a difference between a function definition and function declaration, and the difference between a formal parameter and actual parameter. These are your home assignment. You will do it by yourself, and you can ask me a question if there is some kind of a difficulty. For next lecture, Allah Hafiz.